So yesterday we saw that how a linear transformation can be converted into a matrix. So what the things you need for that? linear map basis or Yes, you need one linear map. Suppose T. नेटवर्क अभी यार हाँ अभी स्टेबल नहीं है, टाइम लग रहा है स्क्रीन पे. So you need a linear map and two bases. A linear map T and two bases. Suppose VM to VN या VN लिया था यहाँ मैंने तो VN ले लीजिए, doesn't matter. VN to VM इसे N दे दो आप. You need two bases B1. B1 will be the basis of domain space. yes sir. 2n, and suppose B2 is the basis for your codomain vector space. So you can construct a matrix denoted by this symbol B1 comma B2, B1 B2 है ना? And it will become a matrix of order M cross n. The dimension of the codomain will be number of rows, and the dimension of the domain will be the number of columns. domain. Yesterday, I think I did one Columns. problem also by taking two different bases. So if you will change the basis, the matrix will be changing, है ना? प्रॉब्लम इस पे कर दी थी आपको मैंने? Yes sir, एक जनरल हो रही. जनरल एक हो गई थी आपके पास. ऐसे अगर मैं T को फॉर अ मोमेंट सपोज आइडेंटिटी ऑपरेटर ले लूं, आइडेंटिटी मैप, you know identity map is a linear map, है ना? And it will be defining from same dimension to same dimension, means VM to VM. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बेसिकली क्या होता है? डोमेन और कोडोमेन हम सेम लेते हैं क्योंकि आइडेंटिटी मैप इज डिफाइंड लाइक दिस. So you can see कि if you will take identity map and suppose you are taking some basis, basis भी सेम होगी आपके पास. You have same basis. Suppose B1 is equal to B2 is equal to B, है ना? अगर बेसिस भी दोनों सेम ले लूंगा, then you will be getting M cross N matrix, M cross M square matrix. Square matrix. और इसको अगर आप देखेंगे it will be coming 1 0 0 0 0 1 0 yes and so on and 0 0 1, है ना? ये तो आएगा क्योंकि यहाँ पर जब आप किसी भी एलिमेंट को लिखेंगे, ऐसे आपका आइडेंटिटी मैप है, सपोज यू विल राइट आइडेंटिटी ऑफ U1, तो ये तो U1 ही होगा, है ना? yes बिकॉज आइडेंटिटी मैप्स क्या होता है? इट मैप्स द एलिमेंट इटसेल्फ. अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 into U1 plus 0 into U2 plus and so on 0 into UM. Similarly, IU2. So IU2 will be how much? U2. So it will be what? 0 into U1 plus yes plus 1 into U2 and so on 0 into U. 0 into In the same way, when you will be writing mth element, it will be UM itself, and UM will be what now? 0 into U1 plus 0 into U2 and so on 1 into mu. जब आप इसको now when you will write the coordinate vectors in column, so it will be coming like this. ये एक डॉट है, ये वन नहीं है, 0 0 and so on. So it is understood it's identity map. So identity operator maps to an identity matrix. ठीक? So based on this, you can do the problems at 5.1. इसे आप अपने आप करेंगे. Same problem set. One map is given to you and two bases are given to you. So you have to find the matrix. Okay. Now, what about its converse? Means next article we have 5.2. Linear map associated with a matrix. Linear map
associated with a matrix. Means if you have given a matrix, then what is the map? Can we find the map from the matrix? And answer is yes. Converse is also holds. If matrix is given to you, you can also find a linear map. may, ठीक है, इसमें क्या है, सपोज यू हैव गिवन सम मैट्रिक्स ए, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स गिवन है आपको, एंड सपोज इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, ये इज इट्स अ फॉर्म ऑफ अल्फा आई जे एम क्रॉस एन. इसका मतलब क्या है, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ एम क्रॉस एन. यू विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग इट, it will give you m rows and columns. So suppose it is a matrix, so can we find a linear transformation? So what will be given to you? Two bases will be given to you again, है ना? अगर आपको एक मैप दो bases given है, you can find a matrix. If matrix and two bases given है, you can find the linear map, है ना? So converse is also true. So suppose this matrix is given to you, and suppose I have a map S, two bases है, suppose arbitrarily ले लेता हूँ मैं, कोई U1, U2 and so on UN, and suppose B2 is some V1, V2, PM. Okay, so I want to find a map. So I can define a map as, define a map. Suppose S अगर मैं ले दूँ तो वो कहाँ से कहाँ होगा, U to V, है ना? It is understood है, U का मतलब होगा U की डायमेंशन तो N होगी और V की m, इसलिए मैंने M ली है. तो यू कैन डिफाइन अ मैप. तो कैसे आएंगे वो, सच दैट कि S ऑफ U1 जो होगा, है ना, द इमेज ऑफ द बेसिस एलिमेंट, इट विल बी व्हाट, अल्फा 11 V1 yes, प्लस अल्फा 21 V2 एंड सो ऑन अल्फा M1 VM and so on. S of UN you can write similarly, alpha 1n V1 plus 2n part of V2 and so on alpha mn m, V. तो ये मैप आपके पास कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. नाउ इफ यू नो द इमेजेस ऑफ द बेसिस एलिमेंट्स, यू नो यू कैन ऑलवेज फाइंड अ मैप, है ना? ये हमने एक थ्योरम करी थी कि अगर बेसिस एलिमेंट्स की इमेजेस पता है तो वी कैन ऑलवेज कंस्ट्रक्ट अ लीनियर मैप. तो यहाँ बेसिस एलिमेंट्स की इमेज पता है आपको, ये है ना? सो we yes, can construct a map for this. So the linear transformation is unique for this basis. यहाँ पर हम जो linear transformation बनाएंगे, है ना, तो we can find this the linear transform. इसको हम extend कर देंगे now. Extend S linearly to hold U. Now I will take a problem. I will explain how to do. So this S is unique transformation. Then S will be a unique linear transformation. और ये जो मैट्रिक्स आपके पास A है, ये क्या होगी एक्चुअली, S B1 B2, है ना, ये आएगी मैट्रिक्स. So any m cross n matrix gives rise to a linear map from n dimensional vector space to m dimensional vector space. Okay, so example लेता हूँ, देखो, it will explain it more clearly. One example I am taking, page number 155 for example. One matrix is given to you, suppose 2 minus 3 4 1 0 minus 1 minus 2 1 0 1 2 minus 2. What is the order? 4 cross 3, है ना? 3, And suppose I want to find a linear map, and standard basis, suppose I am taking firstly two bases are given to you. Let, so this is, इससे आपको आइडिया लग गया पहले ही कि जो हमें S कंस्ट्रक्ट करना है, we will construct S from V3 to V3 to
V4। V4. लेकिन आई नीड बेसिस, सिर्फ मैट्रिक्स से हम मैप नहीं निकाल सकते, बेसिस विल बी गिवन। Yes. तो सपोज स्टैंडर्ड बेसिस गिवन है आपको, हियर इट इज गिवन E1 E2 E3 and suppose V2 is the basis given F1 F2 F2, F3 F3. these are the standard basis. So problem is find what is the linear map associated with this matrix. So as I told you what I will find, I know कि जो column entries हैं, ये columns क्या होते हैं, coordinate vector of the first image है ना, तो I will write Yes. S of E1. So S of E1 whatever it will be what? Two It will then. be 2 of Yes. F1 F1 plus plus F one, कॉलम, F2. ध्यान रखना कॉलम में होता है ना, Yes, माइनस 2 F3 और प्लस F4, F1. ये तो होगा। Yes, sir. हाँ, और ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसे अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ। F1 क्या है, स्टैंडर्ड Yes, बेसिस में क्या एडवांटेज होता है कि यही निकल के आ जाएगा 2, 1 है ना, minus बिकॉज इट इज द स्टैंडर्ड बेसिस, तो यू विल सॉल्व इट विल बी कमिंग द सेम। अगर स्टैंडर्ड नहीं होता तो कुछ और आता, वो हम लिखते थे सॉल्व करके। Similarly, you can write S of E2. S of E2 will be what? minus 3 F1 0 F2 plus 1 F3 plus 2 F So it will be coming same. minus 3 0 1 2 And similarly, third vector. It will be 4 F 4F1 minus F2 minus plus F1 0 plus F3 and 0 F3 minus 2 F4 4 minus 1 0 yeah. minus तो यहाँ से तो आपको इमेजेस पता चली, देखो अभी। अब हाउ टू Yes, sir. फाइंड लीनियर मैप बताइए। नाउ आई वांट टू फाइंड S of x1 x2 x3, व्हाट शुड आई डू, बताइए। वी हैव डन इट, यू हैव दिस इंफॉर्मेशन। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, E1 E2 E3 का यूज करके, X1 x1 E1 plus X2 लिख सकते हैं नहीं, yes sir है ना, क्योंकि ये क्या है भाई, ये x1 E1 का मतलब क्या होगा, x1 1 0 0, क्या होगा ये x1, है ना, yes sir. और जब प्लस करोगे सेकंड टर्म तो x2 का, यही चीज है, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस है। ओके, so I can write this Yes, now sir. because it's a linear map, so this will be Linear. x1 as E1 plus x2 as E2 plus x3 as E3. Now you already have the image of SE1, क्या आया था अभी ये 2 1 1 minus 2 1 minus 2 1 plus x2 plus SE2 X2 minus 0 1 2 plus plus x3 X3 4 minus 1 0 minus 2 ना। अब इसको बस ऐड करना, कुछ नहीं करना आपको मालूम है कि V4 में है तो आपके पास 4 टपल्स आएंगे इन द कोडोमेन। So what it will be coming after solving it? So it is coming, first element will be what, 2x1 minus 3x2 minus 3 plus 4x3. X3 Second element will be x1 plus 0 x2 minus x3, X3 है ना। चलो इसे इधर यहाँ लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज पे स्पेस नहीं है। So it will be coming, the first vector is 2x1 minus 3x2 plus 4x3 था, then x1 minus x3। अब थर्ड वेक्टर will be what, ये देखिए minus 2x1 plus x2 x3 0, so minus 2x1 plus x2 plus X3 and fourth vector will be x1 plus 2x2 minus x1, so it is the general map, है ना, माइनस है the last plus one है, yes last one minus x1 minus 2 plus 2x2 minus 2x3 minus minus 2 2x3, तो माइनस कर देते, बुक में शायद गलत दे रखा है, 4 minus 1 0 minus 2, हाँ गलत होगा, चलो। So this is the map S of
x1 x2 x3. ठीक. So in this way, Yes, sir. where matrix and basis are given to you, you can find the linear transformation. But keep in mind, it depends on the basis. है ना, ये रिमार्क रखिएगा कि if we change the basis, matrix will change. Math will change. Transformation will be changed. If we change the basis, the matrix will be changed. Sorry, the transformation will be changed. The linear transformation will be changed, है ना, क्योंकि यहाँ पर बेसिस स्टैंडर्ड थे तो आपके पास इजीली आ गया. अगर ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं होता तो हमें थोड़ा सा और कैलकुलेशन करनी पड़ती. इट वाज नॉट दैट Yes, sir. उस केस में. ओके. Yes, sir. अगर आप यहाँ पर वी एन टी यू से वी है सच दैट, तो यहाँ पर तो आपके पास ये आई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गई एम क्रॉस एन. इफ यू हैव यू वी और बेसिस आर स्टैंडर्ड है तो इस बेसिस को मैट्रिक्स को हम नेचुरल मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है. ये जो मैट्रिक्स आपका विदाउट विद दिस आता है विद स्टैंडर्ड बेसिस, वो नेचुरल मैट्रिक्स था आपका. अभी हमने पीछे शायद एक नहीं, यहाँ नहीं लिखा था. अगर बेसिस आपके पास स्टैंडर्ड है, इफ v1 and v2 they are standard basis. Standard. ठीक है. then the matrix, Matrix form. तो मैट्रिक्स आएगा आपका जिसे हम t is to b1 comma b2 लिखते हैं ना. दिस इज कॉल्ड नेचुरल मैट्रिक्स, क्योंकि वो नेचुरली आएगा आपके पास, है ना. somebody may ask what is natural matrix. you are getting a matrix by taking standard basis. t कुछ भी हो आपका, whatever the t is there. सही है भाई. तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स है. देखिए एक प्रॉब्लम कर देता हूँ. प्रॉब्लम सेट 4.2 कंस्ट्रक्टिंग द बेसिस मैट्रिक्स. कोई ऐसा ले लेते हैं जिसमें आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है. सपोज हाँ ये ले लेते हैं. चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम में a is given to you 1 1 2 3 1 0 1 minus 1 1 2 0 0. ये एक मैट्रिक्स है सपोज 3/4 Four. है. यहाँ पर बेसिस गिवन है आपको, नॉन स्टैंडर्ड बेसिस है. अब आपको मालूम है कि जो मैप होगा TIS V4 to V3 होगा, है ना. वी नो, ये हमने अलग से लिख लिया साइड में, ना भी लिखे आप डजंट मैटर. लिखने से हमें ये आइडिया रहेगा कि अब हम डोमेन में 4 टपल्स लेंगे और 4 डोमेन में, इसलिए लिख देते हैं. तो B1 जो होगा उसमें 4 आपके पास एलिमेंट्स होंगे. सपोज ये है, और ठीक है ये B1 है तो नॉन स्टैंडर्ड है, और B2 भी नॉन स्टैंडर्ड है. तो प्रॉब्लम इज व्हाट, क्या प्रॉब्लम है भाई? फाइंड अ मैट्रिक्स, Map. नहीं डिफाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. प्रॉब्लम इज फाइंड And LTV. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम V4 to B. V4 to V. ये हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम है. अब यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड बेसिस अगर होता तो मैं आगे भी इसके लिख देता के साथ T ऑफ दिस वन, जैसे यहाँ लिख दिया था, है ना. डायरेक्ट लिख दिया हमने कि T ऑफ E1 या S ऑफ E1 इज दिस, तो यही इसके कोऑर्डिनेट वेक्टर्स हो गए. इसको डायरेक्ट हमने मैप की फॉर्म में बना दिया. बट हियर इट इज नॉट द केस. सो हियर आई हैव टू राइट इन दिस वे.
सो हेयर आई वांट टू कंस्ट्रक्ट इट। अब देखो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे, है ना। क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले तो हमें यहाँ पर ए गिवन है। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से। तो फर्स्टली आई विल राइट टी ऑफ, अब B1 B2 है, तो हमने B1 सपोज कर लिया पहले, मान लो कि B1 में आपके कहाँ गई, यही प्रॉब्लम थी, कहाँ गई यार, ये है, हाँ ये इधर है, सॉरी, ठीक है। अरे यार वो ऑफलाइन हो गया ना, अब तो बीच बीच में स्टूडेंट्स भी आते रहते हैं तो डिस्टर्बेंस रहता है। चलिए, सो हेयर यू हैव B1 B2। तो फर्स्टली आई विल फाइंड, यू नो भाई आपके पास जो TU1 आता है, तो TU1 क्या हुआ होगा आपके पास यहाँ पर, 1 इंटू V1, ये तो है, प्लस तो क्या था यार, U1 U2 U3 U4, तो 1, अब ये 3 है, तो ये V1 होगा, 1 इंटू V1, 1 इंटू V2 प्लस, ये तो होगा। अब U1 क्या है, U1 आपका 1 1 2 है ना। इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे, 1 इंटू 1 2 3 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 1 प्लस 1 इंटू 1 ये है ना, ये V1 है, ये V2। इसको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। देखो अभी तो 1 था, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4, सो हाउ मच इट इज कमिंग, ये आपका फर्स्ट इमेज आई इसकी, है ना। इसका यूज करके ऐसे यू विल टेक नाउ T ऑफ U2, 1 माइनस 1 0 0, तो ये क्या होगा, अब सेकंड कॉलम, है ना। सेकंड कॉलम विल बी द कोऑर्डिनेट वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू दिस। क्या होगा ये, 1 इंटू 1 2 3 प्लस 0 इंटू 1 माइनस 1 1, ये प्लस 1 था, एंड प्लस 2 इंटू 2 1 1। समझ में आ रही बात, ये फर्स्ट के लिए आपका दिस इज कोऑर्डिनेट वेक्टर, और सेकंड के लिए दिस इज द कोऑर्डिनेट वेक्टर, यानी कि इसके इनटू फर्स्ट में 0 की सेकंड, 2 की थर्ड, सो इट विल बी कमिंग 5 4 5, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ सोल्व प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने सॉल्व करी हुई है साइड पे जगह पे, तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। थर्ड है आपके पास, आओ, T ऑफ 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, 1 1, तो 2 इसको भी ऐसे लिख देंगे आप, है ना। सो इट इज कमिंग, 2 ऑफ कितना आएगा, 2 7 8 2 मल्टीप्लाई कर है, डायरेक्ट कर दिया आपने, डायरेक्ट कर दिया इसे। हाँ डायरेक्ट लिख दिया मैंने। और ऐसे ही लास्ट और है 0 1 0 1 0 0 0 0। अब इसको क्या लिखोगे भाई, 3 से इसकी इमेज कहीं नहीं लिखी 3 क्या, से मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस से, उसके बाद 0 से। बताओ क्या आएगा जरा, ये लिखना, इसको मैंने नहीं लिखा है। 3 1 2 3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 1 प्लस 0 इंटू 2 1 1, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ बता दो मैं, 3 माइनस 1 2, 3 टू द 6 प्लस 1, 7 और 3 3 द 9 9 8 8 आ रहा है, ये तो ये गलत लिख दिया क्या मैंने, ये क्या था यार, देख लो खुद, शायद ये गलत लिख दिया हुआ, 2 इंटू दिस और 1 इंटू दिस, तो ये आपका था 2 इंटू 1 2 3 प्लस 1 इंटू 1 into वो तो 1 0, minus 1 कितना था ये, 2 1 द 2 प्लस 1 3, 2 द 4 माइनस 1 3, और 2 3 द 6 और प्लस 3 3 7 है, ये 3 3 3 7, ठीक है, ये आ रहा है। सो यू गॉट 4 इमेजेस, है ना, ये आ गई। अब हमें क्या करना है भाई, नाउ आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ मैप। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, आई विल फाइंड फर्स्टली अ लीनियर मैप। अब पहले हमें ये जो x1 x2 x3 x4 है, देखो, है ना, क्योंकि बेसिस आपका अब वो स्टैंडर्ड नहीं है, इसे हमें क्या लिखना होगा, किसी भी आर्बिट्रेरी को पहले मैंने लिखा, मान लो अल्फा U1 प्लस बीटा U2 प्लस डेल्टा, ये U1 U2 U3 U4 क्या है, ये है, इसको मैं U1 लेता हूँ, सिर्फ नोटेशन बार बार लिखनी पड़ रही है, इसलिए मैंने एक नोटेशन दे दी, ठीक है। तो वी नो कि इफ B1 इज द बेसिस, any vector x belongs to V4 can be written as a linear combination of basis elements, है ना। तो अब मुझे मैप बनाना है, तो मैंने क्या करा, any x, ये कोई x है,
एनी एक्स बिलोंगिंग टू एनी एक्स, यहाँ लिख दीजिए आप, एनी एक्स बिलोंगिंग टू V4 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन। दिस। यहाँ U1 U2 U3 U4 क्या है यहाँ पे, ये आपके वो ही हैं तो ये बेसिस Yes, के sir. एलिमेंट्स थे 1 1 1 2। इसको मैंने नोटेशन दे दिया बस, क्योंकि बार बार लिखना पड़ रहा है इसमें। ओके, अब देखो हमें Yes, यहाँ sir. पे एक्चुअली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको मैप बनाना, यहाँ ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है। तो हियर आई विल हैव टू फाइंड कि व्हाट इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3 x4, है ना। इसलिए आई हैव टू डू दिस थिंग। तो अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रखेंगे 1 1 1 2 प्लस बीटा u2 वाज 1 -1 0 0 प्लस गामा u3 0 0 1 1 प्लस डेल्टा। ओके, सो इट विल बी Yes, कमिंग, sir. जब आप सॉल्व करेंगे इट इज कमिंग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस गामा, 2 अल्फा प्लस गामा, है ना। देखो 2 अल्फा और ये प्लस गामा। अब आई विल सॉल्व इट, तो यू गॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू x1 x2 x3 कंपेयर कर लिया, और 2 अल्फा Yes, sir. प्लस गामा इज x4। नाउ आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3 x4। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो अल्फा विल बी कमिंग x4 माइनस x3, देखो, है ना। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा का यहाँ से रिलेशन आ सकता है। ये मैंने सॉल्व किया हुआ इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। बीटा इज कमिंग x1 माइनस x4 प्लस x3, गामा is coming 2x3 minus x4, and delta is coming x1 plus x2 plus 2x3 minus 2x4. Okay, Yes, so it sir. is the value of this. अब क्या करना है, इन वैल्यूज को वापस उठा के यहाँ रखना है इस पे, ये जो इक्वेशन थी 1 में। so 1 implies that x1 x2 x3 x4 is equal to, तो अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू मैं रखूंगा x4 माइनस x3, x4 माइनस x3, और साथ में क्या था u1 को भी ऐसे ही लिखते हैं, प्लस बीटा इज x1 माइनस x4 प्लस x3 इंटू u2 प्लस ये है 2x3 माइनस x4 u3 एंड लास्ट वन इज x1 डेल्टा, ये डेल्टा है आपका, इंटू u4। अब क्या करना है इस पे, ऑपरेटिंग t, सब पे t लगा देंगे। जब t ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे t आ जाएगा, देखिए, और यहाँ t आएगा, ये लीनियर मैप है तो इट विल कम आउटसाइड, तो क्या जाएगा t ऑफ u1 T of U2, T of U3, T of एंड U4 वो तो पता है। t ऑफ u4, इसको यहाँ U4. लिख दो t ऑफ, ठीक है। अब x4 Yes, sir. माइनस x3, तो एज इट ऐसे इज और T of ये तो मैप आएगा ही आपका। और tu1 कितना था, देखो tu1 आपने ये लिखा था, क्या आया था, 4 5 ये 4 to 4 to 5. 5, so it will be 4 to 5 plus x1 minus x4 plus x3 and tu2 was how much, tu2 5 था for ये 5. 5 4 5 and plus 2x3 minus x4, tu3 was coming, how much it was coming, 3 3 7 7. plus last X1 plus X2 plus 2 X3 minus 2 X4 T of U. ये कितना था 2 7. 2 7. 278, है ना। Yes, sir. अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, टर्म्स अरेंज कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस टाइप का, 7x1 प्लस 2x2 प्लस 11x3 माइनस 8x4 एंड सो ऑन सेकेंड एलिमेंट एंड सो ऑन थर्ड एलिमेंट, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ कैलकुलेशन करनी, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से, है ना, इसे 5 से, Yes, इसे sir. 3 से, और इसको 2 से, और फिर ऐड। तो एक थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम है ये, लेकिन इफ इट इज नॉट स्टैंडर्ड बेसिस यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, है ना। अगर स्टैंडर्ड बेसिस नहीं, यही अगर स्टैंडर्ड बेसिस थी तो हमने इजीली कर लिया था। ओके, सो इट वाज द प्रॉब्लम व्हेन यू हैव एनी जनरल वेब बेसिस। बताइए, ठीक है।
So in this way, you can Yes. always find linear matrices if basis is given to you and matrix given to you. You can always find linear transformation, and if linear transformation basis given to you, you can always find a linear matrix. बात समझ में आ गई है ना? और ये मैट्रिक्स स्क्वायर कब हो जाएगी? When you have ऑपरेटर सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पे अगर हम लेंगे तो ये आपका अंडरस्टूड है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा उस केस में, है ना? चलिए, तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप ये अपने आप करेंगे. देखिए, सेकंड प्रॉब्लम, थर्ड एंड फोर्थ, ये प्रॉब्लम आप कर लीजिएगा, एक एक पार्ट कर लीजिएगा चाहे तो. ठीक है भाई, चलो. नेक्स्ट, नाउ वी हैव रैंक एंड नलिटी. क्योंकि आपने देखा कि रैंक एंड नलिटी आपने फाइंड की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की. नाउ द क्वेश्चन इज कि बिकॉज एवरी मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कैन वी फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स आल्सो, है ना? क्योंकि आपने देखा टी और ए में एक रिलेशन है आपस में, तो क्या अगर हम रैंक ऑफ टी और नलिटी ऑफ टी निकाल सकते हैं, तो क्या हम रैंक ऑफ ए और नलिटी ऑफ ए भी निकाल सकते हैं? और यहाँ पर भी क्या आपके पास रैंक नलिटी थ्योरम का फॉर्मूला वर्क करेगा, है ना? तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, रैंक एंड नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स. 5.2 के बाद सीधा 5.5 है आपका, बीच में आर्टिकल्स नहीं है. रैंक एंड नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रांसफॉर्मेशन की तो होती थी, है ना? तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि यू विल सी दैट कि क्योंकि रैंक के लिए आपको क्या होता था, रैंक का मतलब होता था रेंज स्पेस की डायमेंशन, है ना? अगर टी यू टू भी है तो डायमेंशन ऑफ टी यू, ये आपके पास रैंक ऑफ टी थी. तो हियर वी विल सी कि व्हाट इज द इमेज ऑफ अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स की इमेज हम क्या लिख सकते हैं, मतलब व्हाट इज द इमेज ऑफ अ वेक्टर अंडर द मैट्रिक्स. ठीक है, चलिए इस टॉपिक को आप कंटिन्यू करेंगे कल, क्योंकि बीच में ब्रेक हो जाएगा आपका, टाइम 2 मिनट का रह गया है. तो इसको स्टार्ट करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, मींस फ्राइडे में, है ना? Yes, sir. हाँ, आज स्टूडेंट्स भी कम है आपके, तो आई डोंट वांट कि उनका ज्यादा लॉस हो.